Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business law, and today topic is wide agreement. This is your references part. Now moving toward the today topic, that is a wide agreement. Let's start with the meaning part. What do you mean by the wide? Wide means no longer be accepted by the law. Whenever anything is not accepted by the law or it is not enforceable by the law, this is known as wide. जब कोई भी चीज कोर्ट के द्वारा मान्य नहीं होती है उसको वाइड कहते हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. जब भी कोई एक पार्टी ऑफर रखेगी एंड अदर पार्टी इज इंटेंडेड टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, दैट इज मीन एक्सेप्टेंस. एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा और जब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा दोनों पार्टी मिलकर एक एग्रीमेंट बनाएगी. और ये एग्रीमेंट अगर इफ इट दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सबल बाय द लॉ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉ, दिस एग्रीमेंट इज नोन एज वाइड एग्रीमेंट. जब कोई भी एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा मान्य नहीं होता उसको हम कहते हैं वाइड एग्रीमेंट. तो कोई भी एग्रीमेंट मान्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस एग्रीमेंट में कोई ना कोई इनकैपेबिलिटीज होती है पर्सन की और कुछ सर्कमटेंसेस कुछ फैक्ट की जिस वजह से इसको कोर्ट मान्य नहीं करती. ऐसे एग्रीमेंट को हम वाइड कैटेगरी में रखते हैं. तो वी कैन सी द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली declared certain agreement to be void. They are the some agreement that are comes under the category of void agreement. It's one which is not enforceable by the law. As you know that void agreement are those agreement which is not acceptable by the law or which is not acceptable by the law. This agreement is called as void agreement. This definition is explained under the section 2G in Indian Contract Act 1872. Such agreement does not give rise to legal consequences if the void agreement is performed and such agreement doesn't give any legal obligation. It does not create any legal obligation to the offer and acceptance party. Means both party are free and they are not legally obligated to perform their contract or duties and obligation इन द एग्रीमेंट. अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा होता है जो वॉइड होता है जिसको लीगली एक्सेप्टेड कोर्ट नहीं करती है, ऐसा एग्रीमेंट परफॉर्म हो भी जाता है, तो ऐसे एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं होती है. एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकती है और दोनों पार्टी फ्री होते हैं अपनी साइड से. दोनों एक दूसरे से कोई भी लीगल ऑब्लिगेटेड नहीं होते हैं. ऐसा एग्रीमेंट जो होता है इज बेसिकली वाइड फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन. दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली वेरी wide from its beginning. So this agreement is declared wide from its beginning. That's why this agreement is known as wide agreement. There are the different kinds of wide agreement under the Indian Contract Act 1872. What are these agreement? कौन-कौन से agreement है जिनको wide category में रखा गया है? Let's start with the first one. The first agreement made by the incompetent person. Whenever we make any agreement which is made with the incompetent person, such agreement is known as void. अगर हम कोई भी ऐसा agreement करते हैं जिस agreement में हम incompetent person के साथ agreement करते हैं. What are the incompetent person? Incompetent person is basically are those person who is minor. Minor means 18 साल से जो कम होता है. The person who is of unsound mind, who is not capable enough to make a decision or not understanding the terms and condition of the contract, and the person who is disqualified by the court. तो ये तीन कैटेगरी होती है जिनको हम incompetent करते हैं. If you making any contract or agreement with the incompetent person, such agreement is known as void agreement. And this agreement is not enforceable by the law, and this agreement does not create any legal obligation to the offer and acceptance parties. And this explanation is given under the section 11. Now moving toward the second one, agreement where there is a mutual mistake as a transfer of the fact. Whenever we make any agreement where the mutual mistake is performed as on the basis of the matter of the fact, if the matter of the fact is is mistakenly done, is there is a mistake related to the matter of the fact, सच एग्रीमेंट इज नोन एज वाइड एग्रीमेंट. कहीं पर भी कोई ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर जो मैटर है जो फैक्ट जो मेन सब्जेक्ट मैटर है इट्स बेसिकली मिस्टेक के थ्रू अगर वहाँ पर कुछ म्यूचुअली मिस्टेक हो जाती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट में, ऐसे एग्रीमेंट को हम वाइड एग्रीमेंट करते हैं. लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल वे कैन से दैट वेयर द टू वी कैन से लेट्स सपोज ए पर्सन है एंड इज रेडी टू बाय फ्रॉम बी a certain horse.
तो वो कुछ घोड़े हैं उसे खरीदने के लिए एग्री हो गया है, एंड इट टर्न आउट दैट हॉर्स वाज डाइड एट द टाइम ऑफ द बार्गेनिंग थ्रू द नाइदर party was aware of the fact and both party are unaware, and this agreement is known as void. Here you can say that the mistake is that both party are unaware that horse means जो घोड़ा है जिससे रिलेटेड उन्होंने एग्रीमेंट किया है सेलिंग एंड बाइंग का, यहाँ पर जो हॉर्स है उसकी डेथ हो चुकी है ऑन द डेट ऑफ द बार्गेनिंग, and both party are unaware. The mutual mistake was that both party are unaware about the fact that the horse, the subject matter of the agreement is basically dead. तो यहाँ पर इसी वजह से ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, void agreement करेंगे, and this agreement cannot be enforceable by the law and both party are not illegally obligated to each other or not illegally obligated for their obligations. Now moving towards the third point, that is agreement made where there is a mistake as to any law in the force in the India. That is basically mistake related to the laws in the country. If we make any agreement which is against the law of the nation, this agreement is totally void. If we make an agreement like suppose related to the drugs, अगर हम drugs related कोई agreement कर रहे हैं and this drugs is basically illegal object, or you can say this agreement totally banned in a country, and अगर हम ऐसा agreement कर रहे हैं जो country में बिल्कुल banned है and both party are not aware of the fact that this agreement is basically invalid or are not aware about the laws of the countries. तो यहाँ पर जब भी मिस्टेक किसी लॉज से रिलेटेड हो जाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो इंडिया में या किसी हमारी कंट्रीज में फॉलो नहीं होता, उससे रिलेटेड आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और अगर आप वो एग्रीमेंट कर लेते हैं तो दैट एग्रीमेंट इज कंसिडर एज वाइड. So we can say that ignorance of the law is no excuse. If the person does not know the law of his nation, he must be suffer the consequences. It means that if we take an example, X and Y person making a contract without knowing that this contract is banned and buried in the country India, दिस एग्रीमेंट इज नोन एज वाइड एग्रीमेंट. अगर दो एग्रीमेंट कोई पर्सन है वो एग्रीमेंट करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं जो बेसिकली एग्रीमेंट बैरिड है या यू कैन से बैन ऑन द इंडिया, तो दिस एग्रीमेंट इज नोन एज वाइड एग्रीमेंट. दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन अंडर द सेक्शन 21 in Indian Contract Act. Now moving toward the next category of the you can say the of the wide agreement category, that the agreement of which consideration of the object is lawful under the section 23. Agreement, if we make any agreement which is where the consideration of the object of the एग्रीमेंट इज बेसिकली अनलॉफुल. अगर हम ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पर जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन बेसिकली मीन्स क्या होता है, इज रिटन इन समथिंग और द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिटर्न इन समथिंग, जब दोनों पार्टीज को कुछ मिल रहा होता है, दैट रिटर्न इन समथिंग नोन एज कंसिडरेशन. जब कोई भी ऐसा कंसिडरेशन होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का, इट शुड बी लॉफुल, एंड इफ इट इज नॉट लॉफुल देन दिस एग्रीमेंट इज नोन एज वाइड. तो वी कैन से लाइक कि वेन एवर वी मेक एन एग्रीमेंट, the consideration and an object of the contract or the agreement should be lawful, and if it is not lawful then this agreement known as void. Let's suppose take an example, if the agreement over the murder of someone, अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी के मर्डर से रिलेटेड, या कोई हम we giving a bribe on some kind of a agreement we are doing where the some kind of bribe is giving, तो जहाँ पर हम कुछ भी पैसा दे रहे हैं या हम कोई ब्राइब दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर जो कंसिडरेशन होता है, अमाउंट होता है, ये बेसिकली अनलॉफुल हुआ, और जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भी क्या हुआ, अनलॉफुल हुआ. तो वी कैन से दैट व्हेनेवर मेक एन एग्रीमेंट व्हिच इज वेयर द एग्रीमेंट वेयर द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, सच एग्रीमेंट इज नोन एज वाइड एग्रीमेंट. तो कभी भी कोई भी एग्रीमेंट जो होगा जिसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए. अगर लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में रखेंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. एज यू नो दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ द कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं होगा, एंड विदाउट द कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज वाइड एग्रीमेंट. अगर हम किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं एंड रिटर्न ऑफ दैट एंड वी मेकिंग एन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वी नॉट गेटिंग एनी समथिंग फ्रॉम अदर पार्टी, अगर हम दूसरी पार्टी से कुछ भी हमें नहीं मिल रहा कंसिडरेशन में, दिस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज नॉट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ
agreement, because this action is done basis on the basis of the voluntary action. अगर हम अपने voluntary किसी की help कर रहे हैं तो this is not a agreement, और agreement में अगर कोई consideration involved नहीं है, this is basically known as void agreement. तो consideration होना बहुत ज़रूरी है. Yes, there are some exception जहाँ without consideration भी agreement हो जाता है, लाइक इन लव एंड अफेक्शन में जो भी होता है, एंड कंप्लीट गिफ्ट में, and in case of creation of the agency, so they are the some condition where the without consideration contract can be performed, but in most of the cases the agreement without consideration, that agreement is known as void agreement. This explanation is given under the section 25. Now moving toward the next point, that is a agreement in restraint of the marriage. As my dear student, what do you mean by the restraint? यहाँ पर restraint समझना बहुत जरूरी है. restraint क्या होता है? restraint basically means to be prevention somebody or something from doing something. अगर हम किसी को restrain करते हैं शादी करने के लिए, as you know that age of the marriage is basically a 21 year age. The person is legally you can they freedom has every person is has after the age of 21 they are freedom of a person to do a marriage with anybody, or as this is the natural rights of everybody person. If any agreement which is interfere with the natural rights and the freedom of a person for the marriage related, तो this is basically known as a void agreement. अगर हम कोई ऐसा agreement करते हैं जिसमें हम restrain कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी को शादी करने के लिए, this is agreement is comes under the category of agreement in restraint of the marriage, and this agreement is basically called as void agreement. तो हम किसी को अगर शादी करने के लिए रोकते हैं तो ऐसे agreement को हम void category में रखेंगे. Let's suppose take an example. यहाँ के नाम का पर्सन है जो प्रॉमिस करता है कि वो जी के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, एंड के एंड जी एग्रीमेंट में आ जाते हैं. इट मीन्स के शी इज ओनली मैरिड टू द जी पर्सन, एंड वो किसी के अलावा शादी नहीं करेगी जी के अलावा. बट लेटर ऑन तो जी है जो के नाम की लड़की है, एंड शी if she default on her promise, then she have to pay of 5,000 rupees to the G. तो यहाँ पर उन्होंने अपने प्रॉमिस किया है. इफ द के इज मैरिड टू अ पी पर्सन, अगर यहाँ के जो है वो पी से शादी कर लेती है, जी से शादी नहीं कर पाती है, देन द जी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द के. तो यहाँ पर बेसिकली जो एग्रीमेंट है यहाँ एक दूसरे को रेस्ट्रेन कर रहे हैं, के को रेस्ट्रेन कर रही है कि वो सिर्फ जी से शादी करेगी. तो बेसिकली दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रेन ऑफ द मैरिज, एंड वी कैन से दैट दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली वाइड. और यहाँ पर जो जी है वो कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द के, कि उसने उससे शादी नहीं की, इस वजह से वो 5,000 रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों पार्टी लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं थी. क्योंकि वाइड एग्रीमेंट ऐसा होता है जिसमें कि दोनों पार्टीज लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं होती, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए कोई भी कोर्ट में केस अगेंस्ट नहीं लड़ सकते, बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली वाइड एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट. Now moving toward the next point, that is the agreement restraint of the trade. यहाँ पर व्यापार करने के लिए अगर आप किसी को restrain करते हैं, or stopping the someone to doing any kind of profession or trade or business, this agreement is comes under category of void agreement. We can say that if, as you know that in under the article of 19 under the article of 19G एक article of constitution है जिसमें कि everybody or every citizen has a right, all children have a shall have a right to practice any kind of a profession and trade. सबको अपना राइट होता है कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड को चूज करने का और करने का. और इफ वी स्टॉपिंग समवन टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन विच इज लीगली और लॉफुल, तो अगर हम इसको किसी को रोकते हैं, अगर किसी को काम करने के लिए जो प्रोफेशन को रोकते हैं, तो ऐसे हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम किसी को सम वी आर रेस्ट्रेनिंग और स्टॉपिंग समवन टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन, such agreement is totally void, not acceptable by the court or not legally enforceable by the court. So this agreement is basically comes under the category of void agreement. Now moving toward the 8th point, that is the agreement in restraint of the legal proceeding. अगर हम legal proceeding में किसी को restrain करते हैं, we are not giving any kind of and rights to the person, और उसकी legal proceeding में उसके हम उसको रेस्ट्रेन करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी हम क्या कहते हैं, वाइड कैटेगरी में रखते हैं. वी कैन से दैट एन एग्रीमेंट इज वाइड इफ रेस्ट्रेनिंग एनी पर्सन फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स. किसी पर्सन के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को अगर हम रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को भी हम क्या कहते हैं, वाइड कैटेगरी में रखते हैं. और यहाँ पर अगर हम किसी के टाइम लिमिट्स को भी अगर हम करते हैं, तो बेसिक टाइम लिमिट्स जो होता है एज पर द लिमिटेशन ऑफ द एक्ट
तो टाइम लिमिट्स होता है, अगर हम इसके टाइम लिमिट्स को भी कम करते हैं, जो उसकी बेसिक राइट्स होते हैं, उसके टाइम लीगल एक्शन से रिलेटेड जो टाइम्स लिमिट्स होते हैं, अगर उसको हम कम करते हैं, रेस्ट्रेन करते हैं, उसको हम स्टॉप करते हैं किसी इंसान के, किसी पर्सन के, ऐसे एग्रीमेंट को भी वाइड एग्रीमेंट कैटेगरी में रखेंगे। लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, एक्स एंड वाई है जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई ऑफ अ सर्टेन गुड्स। तो गुड्स से रिलेटेड कोई सरप्राइज, कोई हम सप्लाई से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर बाय देन एग्रीमेंट ऑफ कंडीशन। यहाँ पर एग्रीमेंट जो हो रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है ऑन द वाई दैट ही विल नॉट फाइल एनी स्यू वट एवर इफ एक्स इज अनेबल टू सप्लाई द गुड्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन रखी है कि वाई जो होगा वो कभी भी कोई केस नहीं लड़ेगा, मीन्स वाई इज नॉट यूजिंग हिज राइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड राइट यूज नहीं करेगा अगर एक्स जो है वो अपने गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाता। तो यहाँ पर रेस्ट्रेन किया जा रहा है वाई को टू यूज हिज राइट्स। तो दिस इज बेसिकली एग्रीमेंट क्या हो रहा है कि वाई को कोई भी एक्शन नहीं लेना है अगेंस्ट द एक्स अगर वो अपनी सप्लाई नहीं कर पा रहा है पूरा। तो यहाँ पर बेसिकली वाई को रेस्ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो अपने अपने बेसिक राइट को यूज ना करे, और दिस एग्रीमेंट टोटली वाइड। तो सच agreement is comes under the white category, means not enforceable by the लॉ। तो यहाँ दोनों पार्टीज अगर ऐसे एग्रीमेंट को कर भी लेती तो दोनों पार्टीज लीगली ऑब्लिगेटेड ईच अदर नहीं होगी, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ वाइड। Now moving towards the next point, that is the agreement, the meaning of which are the uncertain. Whenever we make any contract where the things, terms, condition of the contract or agreement is not certain, जब भी कोई भी contract में terms और condition certain नहीं होगी, this agreement is known as void agreement। क्योंकि यहाँ पर we can say that whenever the, as you know that in order to form any valid contract, certainty of the terms and condition or the price, quality, identity should be clear to the each party। दोनों parties को, both party को पहले से certainty होनी चाहिए about each and terms and condition of the contract। If things are not clear since from the क्रिएशन ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बनती है क्रिएशन में सर्टिनिटी नहीं है, मीन्स दोनों पार्टी अनअवेयर है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वाइड एग्रीमेंट करेंगे। लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, एक्स है जो अपनी रेडी है वाई को अपने सामान देने के लिए, राइस देने के लिए। एक्स कहता है कि मेरे जितने भी गोडाउन में, दिलशाद गोडाउन में जितने भी राइस है मैं आपको देने को एग्री हूँ। बट जो वाई है, वाई को नहीं पता कि कौन सी राइस की बात हो रही है, तो देर इज नो सर्टेनिटी ऑफ वट काइंड ऑफ राइस दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द राइस, काइंड ऑफ द राइस, दिस एग्रीमेंट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ वाइड एग्रीमेंट। तो वाइड एग्रीमेंट वही होता है जिसमें कि सर्टेनिटी होनी बहुत जरूरी है, अगर अनसर्टेनिटी है तो दिस इज बेसिकली वाइड एग्रीमेंट। Now moving towards the next part, that is an agreement by the way of the wager। Agreement of the wage of wages means basically means we can say that as you know that wager का means क्या होता है? Wager means a bet। जब भी हम कोई सट्टा लगाते हैं या हम कहते हैं कोई भी हम शर्त लगाते हैं, तो दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट अगर जिसमें हम कोई शर्त लगाते हैं या कोई हम प्रोमिस करते हैं, शर्त लगाते हैं, दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेज। तो वेजिंग बेसिकली क्या होता है? समथिंग रिस्क सच एज अ सम ऑफ मनी ऑन द सर्टेन इवेंट विच इज अ पार्टी हैव नो मटेरियल चांस ऑफ द गेन एंड लॉस। दस तो वी कैन से दैट वेगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। तो हम एग्रीमेंट से पहले ये पीस पढ़ लेंगे कि वेगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। अंडर द सेक्शन 30 में व्हेन टू पार्टी एंटर इनटू द एग्रीमेंट अपॉन द कंडीशन दैट फर्स्ट पार्टी विल पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टू द सेकंड पार्टी। तो वेगरिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है व्हेन द टू पार्टीज, सपोज एक पार्टी है एंड द टू पार्टी है, यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व है और दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट करती है। ऑन द फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पार्टी कहती है कि आई विल पे अ सम फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टू, किसको? टू द सेकेंड पार्टी इफ सर्टेन सर्टेन इवेंट सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कुछ फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है विल हैपन। अगर वो 100 रुपीज देगी अगर वो फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट अगर हुआ तो, मीन्स इफ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट, जो अनसर्टेन है विच इज नॉट सर्टेन कि होगा कि नहीं होगा, उसके बेस पे बैटिंग हो रही है, मीन्स उसकी उस पर वेगरिंग हो रही है कि वो इवेंट होगा, देन द ए पर्सन विल पे टू द बी। और अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता, वो सर्टेन फ्यूचर इवेंट इफ नॉट, and the second party will pay the first party when the event is not happen, and if this event is not happen then B will pay to the A। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर वो चीज हुई, अगर सर्टेन फ्यूचर सर्टेन जो फ्यूचर सर्टेन है
इवेंट है अगर वो हैपन हुआ देन ए विल पे टू द बी, और वो नहीं होता एंड इफ दिस इवेंट और द फ्यूचर इवेंट इट विल नॉट हैपन देन बी विल पे टू ए. तो दिस इज बेसिकली यू कैन बैटिंग ओवर द unfuture uncertain future event. So if you are betting over the uncertain future event, this agreement known as wagering. Let's suppose take an example, A and B है is wagering regarding uncertain event. uncertain event होगा because यहाँ पर certainty नहीं है event होगा कि नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर betting हो रही है. and the agreement यहाँ हो रहा है कि कोई चीज़ होगी नहीं, यहाँ rain से related हो रहा है that it would rain on a particular date or not. And A is promising to B that he will pay 100 rupees if the rain is rain would happen on particular date. अगर बारिश हुई कल को तो वो 100 रुपीज देगा, और अब बारिश नहीं होती देन बी विल पे टू द ए. So this is an agreement. This agreement is basically void. This is not acceptable by the court and not enforceable by the law. And the both party cannot sue a case against each other or cannot recover the amount from each other because this agreement is totally void. So if we make any agreement which is the related to the wagering agreement or related to the way of wager, betting से related कोई agreement करते हैं, this agreement is totally comes under a category of void agreement. ऐसे agreement को हम कभी भी accept नहीं करेंगे. Now moving towards the, here I have mentioned the contingent con. This is a very important topic that I have seen that many questions are asked from this question, that कि कंटीजेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. एज वी हैव डिस्कस अबाउट द वेगरिंग एग्रीमेंट, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट अराइजेज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वेगरिंग एग्रीमेंट. So that question can be asked, what is the difference between the contingent contract and wagering agreement. I will explain you what is contingent contract. तो contingent contract क्या होता है, in which the promisor undertake to perform the contract upon the happening or non happening of the event. तो basically contingent क्या होता है, basically a conditional contract in which the promisor, जो promisor होता है means the offerer undertake to perform the contract. The promisor is promising that he will perform that contract or the agreement if the such event will happen or not happen. अगर कुछ event कुछ होगा या नहीं होगा वो तब जाके वो अपने promise को fulfill करेगा. दिस इज अ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, और ये बेसिकली इसमें कोलेटरल होता है, मीन बोथ पार्टी दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, यहाँ पर कोलेटरल बेनिफिट छुपा होता है. वेयर एज इन वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, वन पर्सन एग्री टू द पे सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी टू द अदर पर्सन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ मनी. यहाँ बेसिकली कुछ अमाउंट देने ना देने की बात होती है, कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट इवेंट के होने पर. यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं होता है, यहाँ बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें कि हम दोनों पार्टी किसी इवेंट के होने ना होने पर एग्रीमेंट करते हैं. बट वेयर एज इन कंटीजेंट कोलेटरल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स छुपे होते हैं. तो लेट्स वी कैन से दैट अ कोलेटरल एग्रीमेंट इज वेयर इन विच द प्रॉमिसर अंडरटेक टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द हैपनिंग. वो प्रॉमिस यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कॉन्टीजेंट में पर्सन जो होता है वो प्रॉमिस करता है कि ही विल परफॉर्म हिज टास्क अगर वो काम हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो उस काम को नहीं कर पाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा. लेट्स सपोज एक पर्सन है, देन ही से दैट आई विल गिव यू गुड्स फ्रॉम द अमेरिका, बट इफ द दैट गुड शिप, जो उसका गुड का शिप्स है, अगर ही दिस शिप विच कैरी अ गुड्स इज रीच्ड ऑन टाइम एंड सेफली, अगर वो शिप है जो गुड्स को कैरी किया हुआ है अगर वो टाइम पे पहुंच गया देन ही विल पे, ही विल गिव यू गुड्स. तो वो आपको गुड्स देगा, ए ने प्रॉमिस किया बी को. तो यहाँ पर बेसिकली टोटली क्या है कि शिप के आने सेफली आने पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, एंड दिस इज अ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर कोई चीज अगर होगी, अगर शिप सेफली पहुंच जाएगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज सेफली हैपनिंग नहीं हो पाएगा, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट परफॉर्म. तो यहाँ पर कोलेटरल बेनिफिट छुपा हुआ है, अगर कोई वो चीज होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा, और अगर शिप सेफली नहीं पहुंच पाएगा देन ए विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट में ये होता है. बट वेयर इज इन वेगरिंग, वेगरिंग में क्या होता है, वेगरिंग में सिर्फ वन पार्ट पर्सन जो है वो एग्री हो जाता है टू पे सर्टेन अमाउंट
टू द अदर पर्सन ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो यहाँ पर दूसरा जो पर्सन, यहाँ वेगरिंग में क्या होता है, एक पर्सन किसी चीज के होने ना होने पर विन और लॉस में मनी ट्रांसफर होगा। जो विनिंग टीम होगी अगर वो जीत जाएगी तो लॉस पार्टी विल पे द अमाउंट, और अगर जो जो लॉस पार्टी है वो अगर वो उसकी उसके अकॉर्डिंग काम हो जाता है देन ही विल देन द विनिंग पार्टी विल पे द अमाउंट। तो यहाँ पर बेसिकली जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे के लिए। तो वी कैन से दैट देयर आर द अनदर डिफरेंसेस यू कैन से। जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है इज बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉमिस और द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली किसी किसी चीज के होने पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा। और यहाँ पर वी कैन से दैट यहाँ पर कोई रेसिप्रोकल और प्रॉमिस नहीं होता, कि मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज़ होगी तब विनिंग या लॉस पार्टीज एक दूसरे को कुछ विल रेसिप्रोकल द प्रोसेस। बट यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स विल हैपन। वो अगर वो चीज़ हो जाएगी देन द कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सच कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टी जैसे ए और बी में दोनों पार्टी शिप के गुड्स के आने पर ही इंटरेस्टेड थे। दोनों पार्टी का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है। सब्जेक्ट मैटर मीन्स गुड्स, गुड्स जो है उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। वेयर एज इन अ वेगरिंग एग्रीमेंट सब्जेक्ट पार्टीज को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, बट दे आर इंटरेस्टेड ओनली द विनिंग एंड लूजिंग द मनी। मनी से रिलेटेड जो विनिंग एंड लूजिंग से रिलेटेड मनी होता है उससे रिलेटेड उनका इंटरेस्ट होता है। वेयर एज कंटीजेंट में क्या होता है, कंटीजेंट बेसिकली अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कंटीजेंट में एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। एंड वेयर एज इन वेगरिंग एग्रीमेंट इज बेसिकली वाइड एग्रीमेंट, और वेगरिंग एग्रीमेंट कैन नॉट बी enforceable by the law, or contingent is basically valid contract, it is enforceable by the law. Whereas we can also differentiate it by that all contingent contract जितने भी contingent contract होते हैं are not wagering agreement। सभी तरह के contingent contract wagering agreement नहीं होते, but the all wagering agreement जितने भी wagering agreement होते हैं which is depend upon the happening and non happening of the unfuture future event होते हैं, जो सबके सब क्या होते हैं, ऑल वेगरिंग एग्रीमेंट आर द कंटीजेंट एग्रीमेंट कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वेगरिंग एग्रीमेंट एंड द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वन ऑफ द important question that's why I'm putting this point over here. Now moving towards the last point, that is a agreement contingent on the impossible future event, or you can say that this is one of the important thing that you can say agreement contingent on the impossible future event। अगर कोई भी एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन द फ्यूचर इम्पॉसिबल इवेंट, इफ वी मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन द इम्पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इम्पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल फ्यूचर इवेंट है विच इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, तो दिस एग्रीमेंट इज टोटली वाइड। तो लेट सपोज टेक एन एग्जाम्पल, ए एग्री टू पे बी 1,000 रुपीज। ए एग्री हो जाता है बी को 1,000 रुपीज देने में इफ बी विल मैरी ए डॉटर सी, अगर बी जो है वो बी ए की डॉटर सी से मैरिज कर लेगा, बट द सी वॉज डेड एट द टाइम एट द एग्रीमेंट इज वाइड। जो सी है उसकी डेथ हो चुकी है, तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर द बी टू मैरी सी बिकॉज द सी इज डेड। तो यहाँ पर बेसिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल इवेंट है बिकॉज सी इज ऑलरेडी डेड, और अब यहाँ मैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट, एंड सच एग्रीमेंट वेयर द इम्पॉसिबल to perform is comes under the category of void. This is not enforceable by the court. Now moving toward the last point, agreement to do an impossible act. We can say that when we make any agreement which is related to the impossible act, if we perform any agreement where the act of the agreement is impossible to perform by the two party, offer and acceptance party दोनों impossible है उस काम को करना, ऐसे एग्रीमेंट को भी हम वाइड एग्रीमेंट करेंगे। लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, ए एग्री टू पे 1,000 रुपीज इफ टू पैरेलल लाइंस आर मेड। यहाँ पर ए और बी दोनों आपस में एक शर्त लगाते हैं, दे आर मेकिंग दैट एग्रीमेंट दैट ए एग्री टू पे 1,000 रुपीज इफ टू पैरेलल लाइन इज मेड, दो पैरेलल लाइंस जो होती है वो मीट कर जाए। एज यू नो दैट टू पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी meet and cannot be
contact with each other. So yeah, this such kind of a contact is impossible परफॉर्म, तो इसको इम्पॉसिबल नहीं कर सकते इफ़ वी, अगर आप इस तरह के परफॉर्म नहीं कर सकते तो सच एग्रीमेंट इज बेसिकली वाइड फ्रॉम इट्स ओरिजिन, तो ये शुरू से ही वाइड एग्रीमेंट हुआ एंड दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ. Now we can also take an example like A agree with B to put life into dead man. यहाँ A agree हो जाता है B को to put life into dead man. एक मरे हुए व्यक्ति मीन्स द डेड मैन में लाइफ करना, उसको लाइफ करना, इट्स इम्पॉसिबल टास्क एंड दिस इम्पॉसिबल एक्ट विल नॉट बी परफॉर्म बाय द ए. तो इट इम्पॉसिबल, तो हाउ कैन द ए कैन परफॉर्म दिस टास्क? This agreement, if they A and B make such agreement, this agreement is basically void agreement because it is impossible to perform such kind of agreement. This is all about the agreement which is comes under the category of void. So this all are the agreement which is called as void agreement, and this is all about the today lecture, and we have covered our void agreement category. They are the 13 agreement which has come called as void agreement we have discussed today. Now, thank you, student.